हैप्पी मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं आज? अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू all of you today. Today our speaker is very interesting, and honestly I haven't met her in person, but I think through this connection and interaction today I will definitely feel her in person. आप सबको आज इस सेशन के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आई वुड लव टू वेलकम लीना चाबरा, co-founder of Simple Life and a coach to help people become a better version of themselves. She shares tips of living a peaceful and a happy life. I think all of us want a happy life, but we want a happy life, but we don't know how to live a happy life. So, freeing from negative beliefs and thoughts through spiritual practices, how to manifest your dreams by using law of nature, which is the law of attraction, which is the law of your thoughts and how nature can work with you. She's a speaker and an LLP certified trainer, a life skill certified educator. So I would love to welcome Leena Chabra for this beautiful journey today. And thank you so much for contributing towards ashram and towards this great cause of sharing unconditionally. We would love to welcome you. And Leena Di, over to you now. Jai Gurudev, Jai Mata Di. Jai Gurudev, Jai Mata Di. Thank you, Priya, for such gracious words. I am humbled and grounded. So it's a beautiful journey for all of us, and I'm really blessed to be there on this platform today and sharing all the tips and tools which I use personally, which has really helped me to grow in my life. And I believe this is going to be helping all other people who are there today. So first of all, I would just like all the people who are here, in fact, um, to be there with one question I have before I begin the session, and this is what I love to do in all my sessions. So the question is, how are you today? So when I ask how are you, I don't mean it. Physically you are okay. Definitely you are here, so definitely things are okay. Just take 1 minute of yours, 8 minutes सिर्फ अपना लीजिए, and go dive deep into yourself and check all the areas of your life. Maybe your all the areas. आपके relations से related हो, आपके career से related हो, आपकी health से related हो, आपके emotions से related हो. How are you today? So when I say how are you today, check it from a scale of 0 to 10. एक स्केल लेते हैं हम 0 to 10 का, एंड वो स्केल है 10 को मैं लूँगी बेस्ट, यू आर रियली इन योर हाईएस्ट स्पिरिट्स. 0 वुड बी द वर्स्ट लेवल, होपलेस, आई डोंट विश कि कोई भी यहाँ पर ऐसा हो. And 5 would be somewhere in the middle, okay. 6 would be yes, you are a little better, and 7 would be you're feeling good. 8 would be you are feeling very good. 9 is excellent, and as I said, 10 is the best, excellent, highest of your spirits right now in all aspects of your life. And similarly, 0 is the worst one, and 1 is bad. 2 would be something average one, okay, and 4 would be okay. Those are the numbers which I'm giving you. इसमें से आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए before the session starts, and keep it in your mind. You don't need to share it with me. Just keep that number with you before the session starts. And okay, so Soumya just wrote 6. It's perfectly fine. Just if you would like to share, so you can share also. Soumya just wrote perfectly fine. If you would like to share. Okay, so today, as the topic says, change your thought, change your reality. I hope you all have that number with you in your mind. And I'll tell you why I asked you by the end of the session. We'll be discussing on the same thing. So, अब क्या करते हैं? We talk about laws of nature. There are a lot of laws in nature. हम अभी भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि things are not working in favor. We have ups and downs in our life, and बहुत से low moments भी आते हैं. And हम complain करते हैं situation में काफी ज़्यादा. We get into the zone of complaining, cribbing, condemning, blaming others. तो काफी कुछ हमारे बस में नहीं होता, हमें लगता है चीजें हमारे वश में नहीं है, और हम इस स्टेट पे आते हैं. कभी आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात सुनी है? ग्रेविटेशनल पुल. आपने देखा है एप्पल नीचे ही गिरता है. आप भले ही पेड़ के नीचे हो और आपके सर पे वो एप्पल गिर जाए, आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे? करते हैं कभी? नो.
सो दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज आपको पता है कि ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है जो कि लगती लगती उसके अगेंस्ट आपने कभी कंप्लेन नहीं करी होगी लाइफ में। सिमिलरली जब कोई इंसान माउंटेनियरिंग करता है, जब हम हिल्स पे जाते हैं तो हमें बेंड होना पड़ता है, जब स्टीप स्लोप्स आते हैं हम स्टिक लेते हैं। तो आपने कभी कभी इंसान को, किसी को देखा है ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, मुझे बेंड होना पड़ रहा है, मुझे बेंड होना पड़ रहा है। हैव यू एवर सीन कंप्लेनिंग और क्रिपिंग लाइक दैट? डिड यू एवर नोटिस दैट थिंग? So why we do not complain of something which we are already aware of? Because हमें पता है ये लॉ है और ऐसे वर्क करता है, हम उसके अगेंस्ट कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। सिमिलरली लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में, कुछ नेचर में ऐसे लॉज हैं जो अगर हमें पता चल जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्लेन जब करते हैं, जब हम क्रिप करते हैं, हम उनसे बाहर आ जाएंगे। And this is what I'm going to share with you today. And very beautiful laws I'm going to talk about. Not only one law, I'll be talking about many laws which will help you. By the end of the session, I'll show you how you can do it and implement in your life, ताकि आपको वो हेल्प करे आगे अपनी लाइफ में, आप उसे अप्लाई करें और देखें कि ये कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। विद दैट इंटेंशन आई बिगिन विद द सेशन। So I'm going to talk about a very beautiful law. This is law of vibration. We have so law of vibration talks about all about energy. It says कि हर चीज एनर्जी है, हर चीज जो भी दुनिया में है, everything it is always in constant motion. कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज चलती रहती है। It is always working and it is moving and moving and moving. That's it. It doesn't stop. तो क्या इसका मतलब है कि मैं मूव कर रही हूँ? There are vibrations in my body right now? Yes, there is. Because everything is energy and energy cannot be destroyed nor be created. और हमें पता है कि energy move करती है. There is motion in energy. और जब वो motion होता है energy में, it is always in the form of vibration. तरंगे up down करके वो energy चलती है and it is always there. So the same thing applies in law of vibration. It says everything moves, हर चीज मूव कर रही है और वाइब्रेशंस उसकी चल रही हैं तरंगों के फॉर्म में, और इन तरंगों को, एनर्जी का जो हम मोशन होता है, इन तरंगों को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। इन तरंगों को हम वाइब्रेशंस कहते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। इस समय इवन आपका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो भी कॉन्स्टेंट मोशन है। वो बात अलग है, आपको उसका आभास नहीं होगा। even the place you're sitting, the room you're sitting, everything is vibrating. उसका आपको वाइब्रेशन लेवल का अब इसलिए आभास नहीं होता है बिकॉज वो वाइब्रेशन लेवल उस लेवल पे अगर हाई माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए, ऐसा साइंटिस्ट ने पाया है कि हर चीज मूव कर रही है, एवरीथिंग इज मूविंग, दिस कॉन्स्टेंट मोशन इज ऑलवेज देयर। तो जब भी हम कोई चीज कहते हैं ना, हमने पॉजिटिव टॉक्स के बारे में बहुत सुना है, स्पीकर्स टॉक अबाउट, मोटिवेशनल स्पीकर्स टॉक अबाउट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और देखो आपकी दुनिया कैसे बदल जाएगी। नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि पॉजिटिव थिंकिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली हमारे को कोई भी चीज क्रिएट करनी तो हमारे को अपनी सोच तो बदलनी पड़ेगी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएशन। बट अगर ऐसा है तो चलो आज सारी दुनिया ही पॉजिटिव सोच लेती है 2 मिनट में और सारी दुनिया ब्रह्मांड में कोई दुख तकलीफ कुछ हो ही ना। सो दिस इज वेयर लॉ ऑफ वाइब्रेशन कम्स। क्यों ऐसा होता है कि पॉजिटिव सोचते हैं हम, वो सोचते तो हैं कि थॉट क्रिएट करा, बट उसके बाद भी चीजें वैसी नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें वो चीजें नहीं प्राप्त होती हैं। सो दिस इज बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर इन द सम इमोशनल स्टेट। हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं वो जब तक ये अलाइन नहीं होंगे, हमारी जो इमोशन, हमारे जो वाइब्रेशंस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, हमारे वाइब्रेशंस बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए लाइफ में, एंड जिस वाइब पे हम होते हैं दैट इज व्हाट वी अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। इट इज नॉट अबाउट जस्ट द अटेंशन, आपने पॉजिटिव सोचा बट आप अंदर से तो बहुत लो फील कर रहे हैं, आप मुंह से तो बोल रहे हैं हाँ अच्छा हो जाए, मे बी दिस पेंडेमिक सिचुएशन, फिर लेकिन अंदर से क्या फीलिंग चल रही है, पता नहीं कब खत्म होगा, क्या होगा, अब तक के 2 महीने और लगेंगे, 3 महीने, पूरा साल ऐसा बीत गया। सो वी थिंक, सी वाइब्स आर टेलिंग समथिंग एल्स, मुंह से बोल रहे हैं हाँ हाँ हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दे आर, both the things are not matching here. So it is the vibes, what vibes we are in basically is going to get us where, what exactly we want in our life. So I'm going to share one screen to explain this thing to you. So can you see the screen? It says that everything is energy. Our thoughts are energy, they travel. Every thought that we think, they travel. Even our words that we speak are energy.
आपको थॉट्स का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपने कोई थॉट सोचा कि अरे आई एम थिंकिंग ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, और तभी उस फ्रेंड का थोड़ी देर में कॉल आ जाता है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? उसका वाइब्रेशन मैच हुआ आपका कहीं ना कहीं जाकर, दैट इज व्हाई दैट पर्सन कनेक्टेड विद यू। इवन द वर्ड्स दैट वी स्पीक, हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है। इसके लिए डॉक्टर मार्सो हैं, ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट, ही डिड अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। जो भी शब्द हम बोलते हैं उसका बहुत ज्यादा असर होता है लाइफ में, एंड हाउ इट इफेक्ट्स। उन्होंने देखा, उन्होंने वाटर के ना 2 जार्स लिए और वाटर क्रिस्टलाइज कर दिया, उसके क्रिस्टल्स जो बने वाटर मॉलिक्यूल्स, एक जार को उन्होंने बहुत ही लविंग और काइंड वर्ड्स बोलना स्टार्ट करा। वेयर इज ऑन द सेकेंड कॉन्ट्रेरी, जो दूसरा जार था सेम लेवल वाटर का, उस क्रिस्टल्स को उन्होंने बहुत ईविल और नेगेटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट करा, just to see whether the words, these energy really affects the positive energy और negative energy क्या सही में होती है। So what he found कि जो positive words इस जार में उन्होंने बोले थे वो क्रिस्टलाइज हो गए, और जो उसके जो क्रिस्टल्स बने जो वाटर के, वो जो है हमें बहुत ही फाइन ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल शेप्स में आए। वेयर जिसमें नेगेटिव वर्ड्स बोले थे उसमें उनको क्या मिला? बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मिले। जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्रिस्टलाइज थे हुए थे, वो बहुत टूटे फूटे से थे। So he found out and he discovered that thing कि okay fine, this energy is there, words have energy। एक सोलोमन आइलैंड्स करके एक जगह है, एंड वहाँ पे ये आज तक की प्रथा है, यू कैन चेक इट ऑन द गूगल ऑल्सो। वहाँ पे इस आइलैंड में काफी सारे पेड़ हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो बहुत ही मैसिव और स्ट्रॉन्ग ट्री होता है वो टूटता नहीं है, और उनको काटने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब टूटना इन सेंस काटने में बहुत दिक्कत है, बहुत ही जायंट है। तो वो क्या करते हैं, सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर, और वहां पे बहुत लाउड वॉइस में बोलते हैं, वहां पर चिल्ला चिल्ला के बहुत ही कर्स करते हैं उस ट्री को। एंड दे फाउंड कि जब वो ऐसी एक्टिविटी बार बार दोहराते हैं तो थोड़े दिनों बाद वो ट्री इजीली कटना स्टार्ट हो जाता है और गिर जाता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। सो इट इज वेरी मच लाइकली व्हाट डॉक्टर मॉर्सो नोटिस इन वाटर में देखा, उन्होंने प्लांट्स में देखा। नाउ जस्ट थिंक अबाउट ह्यूमंस, यू सी, हम भी तो ह्यूमंस हैं, एंड we humans are basically what we are trying to we are 70% water। हम तो 70% वाटर के बने हुए हैं, तो हमारे ऊपर आप इफेक्ट सोचिए कितना होगा। तभी जब कोई नेगेटिवली हमसे बात करता है तो वी गेट अफेक्टेड। व्हाई वी गेट अफेक्टेड? बिकॉज वी गेट द नेगेटिव वाइब्स। वो जो वाइब्स हैं एंड वो वाइब्स हम कैच कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस एंड हाउ वी कैच अप। हम कहते हैं ना, कई जगह हम जाते हैं कि यार इस बंदे से मिलके बहुत मजा आया, बिकॉज इट वाज द पॉजिटिव वाइब्स व्हिच यू अट्रैक्टेड। वेयर एज आप कुछ प्लेसेस में जाएंगे, आप कहेंगे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं, आई एम नॉट हैविंग गुड फीलिंग। वो फीलिंग्स क्या है? बेसिकली वो वाइब्स हैं जो आप सेंस करते हैं, वाइब्रेशंस हैं वो जो, because everything is energy, your words are energy, I just told you that thing, thoughts are energy, and even your emotions are energy। emotion का अगर आप full form भी ले, emotion is nothing, it is energy in motion which is always going ahead। and your actions, what is happening? thought में हमने पहले जो first form हमारा creation है, हमने आइडिया लिया कि this is what I thought to do। उसके बाद वर्ड्स ने क्या किया? उन थॉट्स को एक्सप्रेस करा। जो हम सोचते हैं वही तो बोलते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, तो दिमाग में मेरे कुछ तो होगा तभी बाहर आ रहा है। सो इट्स फ्लो, एंड देन इमोशंस हमारे वैसे ही होते हैं, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेते हैं। आपने सोचा आपको एक सैंडविच खाना है, तो आप पहले थॉट आया, फिर आपने मुंह से बोला है मुझे सैंडविच दे दो, या आपकी सेल्फ टॉक में आया कि हाँ मुझे सैंडविच खाना है, एंड देन यू हैड द टेस्ट बर्ड, जो भी आपका इमोशन हुआ, हंगर का या जैसा भी हुआ, and you took an action, you just went and eat that sandwich। This is how the things work, this is how the law of vibrations work, but these vibrations also have certain frequency। now what do I mean by that thing? हर इंसान एक vibration frequency पे है। अगर हमें लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जिस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे हम होते हैं। हमारी एक फ्रीक्वेंसी लेवल है। एक रेडियो का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडियो। व्हाट हैपेंस? वी सेट अ फ्रीक्वेंसी, हमें अच्छे सॉन्ग्स में पेपी नंबर्स तो वी जस्ट मूव द नॉब या स्विच हम घुमाते हैं जब तक कि वो कैच नहीं कर लेता वो सिग्नल्स, एंड देन वी गेट कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। पर अगर हम सेम नॉब घुमा के बोलते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन टू द लाउड म्यूजिक, मुझे सिर्फ बहुत ही सॉफ्ट नंबर्स सुनने हैं, हम फिर एक फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और उस पर सेट कर देते हैं। So what is this happening? Basically, these are all, everything is energy. Even the song, it travels through sound waves। तो हम जो वाइब्स अट्रैक्ट करते हैं, it is we are setting the frequency।
We are just trying to set the frequency. So you can see through this that first of all it is all like this. Your thoughts begin it. हर चीज हमारी लाइफ में पहले हमारे थॉट से शुरू होती है, because that is the first form of creation. आपके इमोशन जो हैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपके जो भी एक्शंस उस एनर्जी को, आपको जो भी चीज प्राप्त करनी है अपनी लाइफ में, उससे मोमेंटम देते हैं, उसकी तरफ आपको ले जाते हैं. सो एक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज जस्ट नॉट दैट कि आपने एक्शन कोई नहीं है और आपको वो चीज मिल जाएगी. So this is what how law of vibrations is working in our life, and that is why जब भी हमें कोई चीज अट्रैक्ट करनी होती है, हम जब पॉजिटिवली बोलते तो जरूर हैं, हम अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी खुद की वाइब्स कहीं और होती हैं. हम बोल कुछ रहे होते हैं, बट हमारी जो भी हमारा अंदर जो इमोशनल स्टेट है वो मैच नहीं होता. जब तक कि हम अपने वाइब्स को, अपने वाइब्रेशंस को, बिकॉज वाइब्रेशन विल डिसाइड व्हाट and dictate what you're going to attract in your life. Remember that thing. Although I said change your thought, change your reality. Her creation, the first step towards creation of anything you want in your life begins at the thought level. हमेशा आपके thought के level पे start होगा. Each one of us vibrate at a particular frequency. So your current situation and mindset is an external manifestation of internal vibe. आपकी जो भी लाइफ में अभी जो सिचुएशन है, इट इज ऑल बिकॉज बिलीव मी, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इंटरनल वाइब. आप किस वाइब पे हैं, आप कहाँ पर हैं इस समय, आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं, वो आप हमेशा मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में. रिमेंबर दैट थिंग. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं कि आकर्षण का नियम, जो ये कहते हैं आप जिस भी जगह अपनी फोकस डालेंगे वही चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं. आई होप व्हेन यू कंबाइन दीज टू लॉ यू अंडरस्टैंड. प्राइमरी लॉ जो है हमारा मेन जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन. तो हमें कहाँ वर्क करना है? वी हैव टू वर्क ऑन आवर वाइब्रेशंस, एंड द वाइब्रेशंस वी कैन चेंज बिकॉज देयर इज साइंस बिहाइंड सेटिंग योर वाइब्रेशन लेवल्स. आपका ये हर एक थॉट जो आप सोचते हैं, हमें वर्क कहाँ करना है? पहला लेवल क्रिएशन. फर्स्ट लेवल क्या है? वट एवर यू थिंक यू बिकम. पहला आपने सोच बनाई उसके लिए, तो हमारे थॉट्स हमें क्रिएट करें. देन सेकेंड, वट एवर यू फील इज वट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. इट्स योर फीलिंग विच इज गेटिंग अट्रैक्टेड. तो कई बार आपने ऐसा सोचा, मैंने तो बहुत सोचा अच्छा हो जाए, हमारे साथ अच्छा हो जाए, बट हमेशा वो फीलिंग नहीं आ पाती क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं हो पाता कि कुछ अच्छा हो आपके साथ. या तो पास में कुछ ऐसा हुआ होता है, आप उस फीलिंग पे आ ही नहीं पाते हैं. सो where that until you get into that feeling you will not be able to manifest, because as I said कि आपकी जो भी current situation है आपका बिल्कुल प्योर, आप जो भी एक्सटर्नल मैनिफेस्ट कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस. सो जो फीलिंग्स हैं वो कहाँ से आती हैं? आप जो कॉन्शियस थॉट आपने बार बार डाले हैं वो आपके एक बहुत ही पावरफुल प्लेस है हमारे जो हमारे को देन मिली है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड आप चेतन मन जो कि 24/7 आवर्स आपके साथ वर्क करता है. आप शायद कॉन्शियसली जरूर एक बार सो जाएंगे, बट रात को सोते समय भी वो एक्टिव होता है. और सबसे अच्छा नियम सबकॉन्शियस माइंड का ये है, उसे ये नहीं पता कि आपकी अपनी जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है. आप जैसा डालना चाहो उसके अंदर, जैसा बोलोगे वो उसे ले लेगा. तो कॉन्शियसली अगर आपने बहुत बार ये सोचा कि कुछ अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके लाइफ में आपकी वो चीज, तो वो वाली पिक्चर्स वो भेजता चला जाता है. आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज प्रोमिनेंट हो जाती है. तभी आप वो फीलिंग नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं. आपकी फीलिंग लो होती है, आपकी वाइब्स लो होने लगती है, बिकॉज a thought is creating a chemical reaction in your body, if we talk in science के टर्म्स में बोलें. और फिर वो जाकर आपकी जो फीलिंग है सबकॉन्शियस लेवल पे, जो ऐसा आपने जो भी अपने पास एक्सपीरियंस में करेक्ट फीलिंग सेट करता है. और ये जो फीलिंग है रिजल्ट होता है आपने जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बार बार सोच के डाली. कॉन्शियसली आपके साथ जो भी हो रहा था वो पिक्चर्स आपने डाली, उससे आपकी फीलिंग सेट हुई. एंड ये फीलिंग इन टर्न आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक एनर्जी भेजता है, और वो एनर्जी डिसाइड करती है कि आप कौन सी वाइब्रेशंस में हैं. आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं या आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं. और वाइब्रेशंस के भी बहुत लेवल्स हैं, आप ऊपर नीचे किधर किस लेवल पे हैं, आप कितनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर वाइब्रेशंस. सो
I'll be showing you the next slide. As I said, I always work with spiritual connection. So this is the Hawkins scale, जहाँ पे आप देख सकते हैं frequency levels हैं different, you know. So this is a contracted version and one is expanded one. हमारी जब consciousness काफी expanded होती है, हम जब भी सफरिंग हमारे लिए तब होती है जब हमारे अंदर कोई गिल्ट होता है, समथिंग विच वी वांट, यू नो, शेम फीलिंग, हमारे हम होल्ड बैक करते हैं कई सारी अपनी पास्ट की चीज़ों को, ग्रीफ होता है. So this is all causing suffering to us. Even desires, no, desires in itself is not bad, but desires जब होती हैं towards you know, your attachment to your status, you know, you acquire more thing and all ज़्यादा चाहिए, that to greed and desire, you want more and more, that causes suffering. But अगर वही desires हमारी कुछ और purpose में change हो जाती हैं, something which shift from I, अपने की बजाय we think more about other people or people also, that gives you the reason, वो ऊपर के level पे आ जाती हैं. We have anger, we have pride in ourselves, but the moment we come to the neutral level, हमारी consciousness expand करने लगती है. We have willingness, yes, I'm going to change my reality. We have acceptance, हमारे अंदर acceptance आ जाती है. We try to see everything as it is. Life में जो भी हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं. वी डोंट रेजिस्ट थिंग, हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं. उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर सोल्यूशन देखते हैं, rather than, you know, again नेगेटिव एनर्जी. हम कहते हैं ना बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, वी से ऑल दोस वर्ड्स, यू नो, चेक द वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग, यू नो, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे पास जॉब नहीं है, दिस दैट, हम हमेशा अगर कंप्लेनिंग करते हैं, so what we are again coming back to suffering. We are not accepting the things and the situation as it is. And plus हम बोल क्या रहे हैं, हम नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स भेज रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स में आपने जो भी बोला, इट इज ऑल द एनर्जी विच यू आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स. इट इज गोइंग टू, यू नो, एवरीथिंग इज इन मोशन. आपने अब समझा इस लॉ को, हर चीज मोशन में है. अगर हर चीज मोशन में है तो आपने भेजा, इट इज गोइंग, यू आर सेंडिंग दिस टू द यूनिवर्स. आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी. तो यूनिवर्स ने कहा ओके फाइन, यू आर सैड, यू आर नॉट हैप्पी. सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ. और जो जो चीजें हम बोल रहे हैं, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वॉट एवर यूर फोकसिंग ऑन, आप जिस भी चीज पे फोकस कर रहे हैं वही चीज आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आप मोशन पे हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स मोशन पे हैं, सिमिलरली कॉन्स्टेंटली जब वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, आप every time, every second we are moving towards something, and we are also attracting certain things to ourselves. हम अट्रैक्ट भी कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि मोशन है वहां पर. दूसरे थॉट जो आपके लेवल की फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन है, सेम चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल सेम चीजें. तभी काफी बार ऐसा होता है कि आप जिस परिस्थिति पे होते हैं, आप अगर पॉवर्टी लाइन में हैं या आपकी हेल्थ में कोई ठीक नहीं हो रही है, why? Because you were focusing all the time only on the negative aspect. आप हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट. बट इफ यू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर एंड यू मेक अ चॉइस, यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो यू नो द लॉ कि कॉन्शियस लेवल पे मुझे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान देना पड़ेगा और मेरे वर्ड्स पे भी, एंड यू नो द वाइब्रेशन लेवल एंड द एक्शन, एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू is going to be aligned. अगर ये सारी चीजें अलाइन नहीं हैं, then I'm not going to get what I want. So we have to consciously take one step every, धीरे धीरे करके हमें एक स्टेप लेना है. And this requires lot of discipline, lot of discipline, lot of discipline. So once your acceptance is the reason, is your purpose is far bigger, which is not at all खाली हमारे लिए नहीं होता. Purpose is something giving out to the world. जब आपका पर्पस इतना बिग होता है, जब आपके पास एक रीजन होता है लाइफ में जीने का, अब वो जीने का मकसद जो आपका होता है इज ऑल अबाउट गिविंग गिविंग गिविंग, you know, you really are floating in a different energy. You have love, you have joy, you have peace, and yes, enlightenment definitely is something, at least एक गोल तो नहीं है, but yes, we all have to work on gradually, because we are all humans traveling in this human form. हम सारे souls एक journey पे, where the ultimate goal of every human being is going to be enlightenment only, I'm sure. So I'll be coming back to you to show you something.
So I'm going to show you some experiment, like not the experiment. This is what I have always been doing, and I believe in science. And जब भी हम कुछ करते हैं या हम किसी को बताते हैं, तो हम बोलते तो हैं कि हाँ हमने एनर्जी तो डाली, आपकी वाइब्रेशंस की बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है, हमने इसलिए अट्रैक्ट करा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बार बार नेगेटिव अब समझ आया कि क्यों दे रहा था, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस जो थी वो हम वापस ला रहे थे. सो लेट अस सी वेदर दिस इज ट्रू. क्या सच में हम जो बोल रहे हैं और जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? एग्जाम्पल्स हमने सुने एंड मे बी, बट हमने एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं करा अभी ऐसा. सो आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. सो आई वुड लाइक एंड अप्रिशिएट अगर आप लोग भी ये चीज अभी करें मेरे साथ. सो यू कैन डू दैट थिंग विद मी. This is, I hope you can see, please type in yes because I cannot see you people. आप ये अपना राइट हैंड है, आप आगे ले आए. इफ यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड, राइट. आपके दोनों हाथ के नीचे एक बेस लाइन है. दिस इज वन बेस लाइन इज देयर. Here and here, can you see the baselines? Just bring them together. इनको साथ में ले आइए. And see, मेरा राइट हैंड जो है ना, मुझ लेफ्ट हैंड से थोड़ा छोटा है. कैन यू सी दैट थिंग इन द स्क्रीन? Can you type in yes because I cannot see you people? Yes, ma'am. Okay, thank you. So this is it. So you see your right hand थोड़ा सा छोटा है, ठीक है. अभी हम एक थॉट क्रिएट करेंगे. आई वुड लाइक यू पीपल टू डू इट अलोंग विद मी. हम एक थॉट क्रिएट करते हैं. ये मेरा राइट हैंड है, छोटा है, समहाउ मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये छोटा बड़ा नहीं पसंद आता. सो आई सेड नहीं, मुझे ये भी इक्वल चाहिए. सो ब्रिंग दैट राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस, अपने आगे ले आइए एंड डू इट विद मी. व्हाट आई जस्ट स्पोक अबाउट, मैंने अभी बोला हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स सब एनर्जी हैं. तो लेट चेक ना है भी या नहीं है. So, you know, I brought this in front of my face and I said to this hand, I said, grow longer. You can say it with me 8 times. I'm going to do that. Grow longer. Grow longer. Grow longer. I'm doing it with all my energy. I really want this to grow longer. Grow longer. Grow longer. Grow longer. Grow longer. Grow longer. I said, I will join them together with the same baselines and I'm going to see. Can you see my hands? I can see them equal. Can you see that? Yes, ma'am. Okay. So you saw that thing. This is, what did I do right now? What did I do right now? There's somebody who's in waiting, I believe. Just waiting. So this is what it is. So you saw, अभी भी हाथ बराबर ही है. I'm showing you this is how we are creating our world. ऐसे हम अपनी दुनिया बना रहे हैं. This is how we are creating our world every time. हम जो भी सोच रहे हैं, पहले एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसे वर्ड्स बोल रहे हैं. वैसे हम अगर you know what we can do right now, अभी जब हमें पता है कि हमारा हर थॉट, हमारे हर शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं. We create our own world. So can't we just consciously choose to make the world that we want to live in? And when people say, it is not possible, we can always, okay. I'm making you the host. Just a sec. Oh.
So it is always the we do a lot of prayers, हम काफी सारी prayers करते हैं, and we do a lot of things to change our world. The best technique I'm going to share with you today is, you might have heard about it. It is called affirmations. हम present tense में बोलते हैं उन्हें, वो sentences जो हम चाहते हैं life में बोलना. But do you know there is a way of choosing your right affirmations also? हम अपने affirmations को right तरीके से, हमें पता है कि हमें अपने सारे affirmation are the positive affirmations की हम बात करेंगे, जो हम present tense में बोलेंगे हमें अपनी life कैसी चाहिए. पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक ऐसा फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं ना भगवान को, भगवान मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दुख दूर कर दो, मेरे पास बहुत दर्द है. आई वुड से हम इस प्रेयर को चेंज करेंगे व्हेन वी, बिकॉज हम बार बार क्या बोलते हैं, मुझे बहुत दर्द है, तो फोकस फिर से कहाँ जा रहा है आपका, बहुत दर्द है. सो रादर देन सेइंग भगवान मुझे बहुत दर्द है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, you always tell to your God, because it's a spiritual connection. आप अपने आप connection बनाएंगे अपने affirmation से. God, I trust you, I love you, I completely surrender this desire. So please help me. जो भी चीज आज मेरे और आपके बीच में जो भी obstacles आ रहे हैं, I showed you that frequency level, fear and love. Love is your divine, जो God है. आप उससे बोलें कि आज वो ऑब्स्टेकल्स मेरे रास्ते से हटाने में मेरी मदद करिए. तो द एनर्जी इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग नेगेटिव राइट नाउ. हेल्प मी टू रीच यू, हेल्प मी टू कनेक्ट विद यू, एंड शो मी, ओपन मी टू द लेसन्स ऑफ लाइफ. जब आप लाइफ में हर चीज ऐसी बना लेते हैं दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ को आप हमेशा एक स्कूल की तरह लेकर चलिए. देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे बहुत ही ग्रीफ स्टिकन भी आपको फील होगा, लो मोमेंट्स होंगे. But then you always, if you accept life as a school, जहाँ पे आप lessons and learnings लेने आते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होगी. Because जब आपके difficult chapters आएंगे ना, take it as a learning. And affirmation उन परिस्थितियों में सिर्फ आपकी एक ही होगी, God, show me what you are trying to teach me here. Don't run away from your lessons and don't focus on the negative, because वो vibes आपको बहुत ज़्यादा grief में ले जाएंगी उस समय. So please request your God and ask him, God, what are you trying to teach me? अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ इक्वल नहीं जस्टिस होता है. लेट्स से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लो वाइब्स में चले गए हैं, एंड दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग गुड फॉर देमसेल्फ. व्हाई? बिकॉज उन्होंने ऐसी न्यूज, अपना डेटा अपने बार बार फीड करा अपने दिमाग में थ्रू लिसनिंग टू न्यूज. तो आपने क्या करा, वो नेगेटिव वाइब्स आपके पास आती चली गई. दैट वाज अफेक्टिंग यू. आई टोल्ड यू, हमारे अंदर तो खुद ही 70% वाटर है, तो हमारे ऊपर वो वाइब्स का इफेक्ट होता है. सो डू नॉट बिकम a sponge to a negative energy. को sponge ना बनिए. When you know now कि आप खुद अपना world create कर सकते, you can always consciously choose what you want in your life. So you don't become a sponge, rather become an aura of light for others. Give love, because that will raise your vibrations. Give love. अपने पेट को, आप किसी को हक करिए, किसी के चेहरे पे खुशी लाइए. So these are going to raise your vibration, vibration of love, vibration of joy, vibration of peace. This is what we humans are. By giving. कुछ देने के लिए आपके जरूरी नहीं है आपके पास आर्थिक कुछ भी हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो. देने के लिए सिर्फ एक इंटेंशन बहुत बड़ी होती है. It is more than enough. So you have to keep affirming to yourself the right words. Choose the right word every time. And the worst part is, हर समय हम क्या करते हैं, thinking. And उस thinking में हमें ये भी नहीं पता चलता हम क्या सोच रहे हैं. We never come to know what we are thinking also. So now you have to take a pause. Make it a habit. I tell you, 3 times a day, take a pause. 3 times a day, take a pause. जब आपको लगे कि, and take a pause and ask yourself, the only question which you want to ask, what am I feeling right now? Because अब आपको पता है, आपकी फीलिंग्स बताएंगे और वो क्या करेंगी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक ऐसी एनर्जी भेजेंगे जो आपकी वाइब्रेशंस बना लेंगे. एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि अब आप नेगेटिव कुछ करें क्रिएट. तो अपने थॉट्स, क्योंकि 70 से 80 हजार थॉट्स हमारे माइंड में रन करते हैं एक दिन में, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं. देयर 70 to 80,000 थॉट्स व्हिच आर रनिंग इन आवर माइंड. सो वी वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर ओनली, एंड वी विल चेक. We will do this check every day, 3 times a day. We'll begin with 3 times to make it a little easier for ourselves. And we'll check, what am I feeling right now? If you're feeling okay, continue with your that day.
But if you're not feeling okay, affirm yourself. And how will you affirm that? And this exercise do with all my students, and I did it on myself. मैं वही exercises करती हूँ जो मैंने खुद करी हैं जब मैं बहुत low point में थी अपनी life पे. This exercise does wonder. आप में से कुछ लोग इसे बहुत funny भी मानेंगे और resist भी करेंगे इसे करना. But if you really want to instantly come out of that negative vibe, do one thing. Make an affirmation. Go in front of the mirror. Mirror के सामने जाओ and tell right into the mirror. Look into your eyes. What difficult होगा? Look into your eyes. जो भी condition हो, आपको लग रहा है I'm not good, I'm not good, I'm not worthy. कभी कभी ऐसी feelings आती, कोई situation नहीं अच्छी है. Just go and tell yourself, I love you. I love you. I love you. And you know what? ये इसलिए difficult में बहुत लोगों के लिए होता है बिकॉज आपकी वाइब्स तो अच्छी नहीं होती हैं, आपको लो और आप नेगेटिव की तरफ उस समय खींचे चले जा रहे हो. एंड जब आप शीशे के आगे आंखों में आंखें डालकर अपने आप से बोलते हो ना, आप देख लेते हो, आप वहीं जज कर लेते हो कि कब आप अपने आपको और खड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो, कह रहे हो नहीं ये नहीं होगा मुझसे. आप पकड़ो उसी जगह पे. Why I'm asking you I love you? Because you are not you. It is someone inside. You come from a greatness. You are a part of greatness. There is greatness inside you. So you have to tell by consciously choosing, I love you. I love you. Indirectly, you're telling your divine, I love you. Universe में सारी बातें जा रही हैं. You're telling your divine, I don't have complaints. I'm not thinking negative. I love you. I love you. You keep repeating, and the moment you do that, I think I would say do it as loud as possible. जब तक ये आप उसे अपनी reality नहीं बना लो. जब तक आप उसे अपनी reality नहीं बना लो. Keep telling yourself, I love you. I accept you as you are. You're perfect. कभी अपने आप से एक लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ चलता है. आप हमेशा फील करोगे वो मुझसे अच्छा, मैं इससे बुरा, मैं इससे कम. कंपैरिजन मोड में आता है. बल्कि ये लॉ अपनी ताकत की तरह यूज करिए. लॉ में कभी भी कोई भी ये चीज नहीं होती कोई उससे बड़ा या कोई उससे छोटा होता है. हर चीज अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप आज देखें आपके पास कोई स्किल्स हैं किसी से कम है, पर आप पीछे भी तो मुड़ के देखेंगे कईयों से आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेटर हैं. सो डोंट गेट इनटू द कंपैरिजन. यू आर परफेक्ट इन द मोमेंट. जैसे भी हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं. एवरीथिंग इज फाइन एंड गॉड हैज एवरी रीजन. गॉड हैज रीजन to change and divert your attention. He's trying to teach you something. उस lessons के लिए open हो जाइए. He's trying to tell you something. There are people who come to me who tell me कि वो मुझे बहुत बुरी तरह बोलता है. What is it? मेरे को रिलेशनशिप में अच्छे से हैंडल बुरा किसी ने बोला, आई फेल्ट हर्ट. वाई? बिकॉज गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग. अब बार बार अगर अपने रिलेशनशिप में धोखा खा रहे हैं या किसी का कोई आपसे बुरा बोल रहा है, आपके घर में कोई ऐसा है, आपको बार बार हर्ट हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू टीच यू. ये चीजें बार बार आएंगी. you're putting your thought he is bad, he is bad, he is bad. No, you are love. Send him love energy no matter what that person says. I send you love. and उसके लिए आपको क्या करना है? पहले खुद को तो लव से भरो. अपना प्याला तो पूरा भर दो. छलकाओ, इतना छलकाओ उस प्यार से, उस डिवाइन लव से, that you spread love to everybody. So the affirmation which I will tell you, जब आपको कोई बुरा बोले, so tell that person, अंदर से आप उसके लिए वाइब भेजो. नेगेटिव नहीं भेजनी है, because that is what you want to come back to you. So what do you want to say? आप क्या बोलोगे? I surround you with love and light of divine, and I surround myself also with love and light. मैं खुद को भी, because आपको अपने आप को भी करना है, उसको भी. And then you keep sending that, and this does wonders. When you send love to everybody, love comes back to you. That is what is happening in life, and this is how we have been attracting things in our life. So I'll just take back you to the screen, and the laws of life respond to your thoughts, and what you think you become. Now you know कि आपने जो thoughts सोचा आप वही बनेंगे, and your feelings are going to attract what you want in your life, and that is how the things comes to you. So your feelings are going to define what you're going to come back in your life. And awareness is the beginning of transformation. जब आप consciously aware होते हैं, what am I thinking right now? That is the basic beginning of your transformation. आपकी life वहाँ पे change होना start होती है.
You have to come back to the awareness, because normally हम सिर्फ thinking रहते हैं irrespective. So every time ask yourself, जब आपको लगे what am I thinking right now, keep doing that thing. These are just affirmations I'm sharing with you. These are very positive ones. I love my life and my life loves me. So indirectly you're telling your God every time. कुछ भी life में बुरा भी हो रहा है, तो you're telling I love my life and my life loves me. So this is what is going to come back to you, because your words, your thoughts, creation starts at your thought level. आपने वो चीज़ करी, आपने बोला, and वो आपके emotions form होंगे. Emotions के लिए आप बार बार subconscious को आप वो energy भेजेंगे. Doing the mirror exercise, saying the positive affirmations, you're going to do that thing, and you can create the visions all the time. We experience it only when we have faith in our doubts and doubt in our faith. हमें डर की भावना तभी होती है जब हम अपने ऊपर वाले, अपने जो भी डिवाइन है, उस पर इतना फेथ नहीं रखते हैं, और बल्कि आप डाउट करते हैं अपने फेथ को. ऑल्दो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, बट अगर हम ये कहते हैं, हम लाइफ में जब लड़ते हैं किसी सिचुएशन में, जब कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है और हमें लगता है नो व्हाट विल हैपन, लाइक समवन गेट्स इल एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अब क्या होगा, बिकॉज यू आर डाउटिंग. हैव फेथ, just have faith. Everything is fine, everything is perfect. I love my life loves me. I love you God, I love you God. So, and thank you. The best thing is keep doing gratitude always. Thank you, I'm blessed. So when you keep doing those kind of affirmations, you will attract all those things in your life. And take a pledge today. Life always gives me a choice, and I choose to take responsibility of my every thought, word, action and feeling. हमें लाइफ हमेशा एक चॉइस देती है, and I choose to take responsibility of my every thought, every word, every action and every feeling. तो अगर लाइफ में हमारे को ही सब कुछ दे दिया है, हम ही कॉन्शियस चॉइस मेकर बनेंगे ना. Why will we give anybody any choice on this? We are the conscious choice maker. हम बनाएंगे अपनी लाइफ, because we know. इतना सिंपल सा है ना. भगवान ने कहा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा यूनिवर्सल का माइंड होता है, यूनिवर्स का होता है, डिवाइन माइंड है, जिसे बोलते हैं गॉड माइंड. उसको तो सिर्फ वो देना है. वो तो कहता है आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा. ओके, आई एम नॉट. द कॉन्शियस माइंड टेल्स यू. What is the conscious mind telling you? Oh no, I'm not feeling good, I don't have this. तो यूनिवर्स कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हुकुम मेरे आका. सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा जो हुकुम मेरे आका, जैसा बोलो वैसा पाओ. ठीक है, हाँ, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा है. नाउ व्हेन यू से गॉड आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, गॉड विल से ओके यू आर हैप्पी, आई विल मेक यू मोर हैप्पी, देन you attract those things. Such a simple law, which is where if we apply every moment, every second of our life, consciously we are creating, and we have faith. We have such a strong faith in ourselves that nothing in this world can, no matter whatever happens in your life, जितनी भी है आपकी लाइफ की, hold your vision. विजन में आपने जो बना लिया कि मुझे ये चाहिए, विजन इज व्हाट द इमेजेस दैट यू आर गोइंग टू होल्ड. वो इमेजेस कौन सी होंगी? पॉजिटिव इमेजेस. वो भी हमारी चॉइस है ना, हमें कौन सी इमेजेस चाहिए अपनी लाइफ में. हम क्यों अपनी लाइफ के सैड मोमेंट्स को याद करें? हम अपनी लाइफ के सिर्फ पॉजिटिव मोमेंट्स को क्यों नहीं याद करें? सो व्हाई डोंट वी होल्ड दोज विजन्स एंड देन डोंट होल्ड द सिचुएशन अराउंड. अब आपके बाहर इस समय परिस्थिति जो भी हो लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपके फाइनेंशियल चीज में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, कैसी भी सिचुएशन हो, यू आर गोइंग टू होल्ड योर विजन. Just the vision. Focus here on your images, what you want to hold, not the situation, what is happening around you. You're not going to do that thing. And acceptance is the best thing. Everything in life just is. Law of relativity यही कहता है कि ये मत देखो कि आगे और पीछे. आप रिलेशन में देखते हो ना, अरे ये मुझसे ज्यादा है तो मैं कम हो गया. अब पीछे देखोगे, अरे मैं इससे मतलब ये मेरे से कम है, मैं अच्छा हूँ, आई एम बेटर. तो अपने फेवर में इस लॉ ऑफ रिलेटिविटी को यूज करो ना, कि मैं किसी से बेटर हूँ. उस थॉट को अपने दिमाग में रख लो ना, कि आई एम गुड. जो भी चीज, आई एम गुड, नो कंपैरिजन. सो एवरीथिंग इन लाइफ जस्ट इज, वी मेक इट व्हाट इट इज. हर चीज लाइफ में जैसी है वैसी है. हम उसे जो मीनिंग देना चाहें हम वैसी बनाएंगे उस परिस्थिति में. तो क्यों हम उस समय बोले सब खराब है? क्यों ना बोले सब बहुत ग्रेटफुल है हम लोग कि वी आर अलाइव टुडे and everybody around me is fine, my friends are fine, my family is fine. क्यों नहीं हम उसको वो मीनिंग दें? क्यों हम उसमें कमियां ढूंढें? No. So
लाइफ इज जस्ट इज, वो उसमें कोई एडिशनल मीनिंग देने की जरूरत नहीं है, हम बनाते हैं उसका मीनिंग, हम चूज करते हैं. सो व्हेन यू एक्सेप्ट विदाउट एडिंग, लेबलिंग, नेमिंग, हम उसे कोई लेबल दें, ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू बिकॉज दिस टू शैल पास. लाइफ में सिर्फ मैम प्लीज स्पीक लाउडली. लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है कांस्टेंट, दैट इज चेंज. चेंज, दैट्स इट. And even if life seems a little harsh to you, remember that is preparing for your new beginnings. हर चीज नेचर रिन्यू करता है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. सारे मौसम एक जैसे नहीं होते हैं, इट कीप्स चेंजिंग. So why not to create a life of your desires today? In 5 minutes time, can we do that thing? He was also born, Nick Vujicic, he was born without arms and legs. अब आप मुझे बोलोगे कि डेस्टिनी होती है मैडम, हमारे साथ तो ये इतना बुरा हो गया, तो आई वुड से इट्स, भगवान कभी भी किसी को सफरिंग नहीं देता है. गॉड नेवर गिव्स सफरिंग टू, इट इज वी हु चूज व्हाट वी वांट टू मेक आउट ऑफ इट. सफरिंग वाज, हम इससे तो बहुत अच्छे हैं ना. एंड सी, लुक व्हाट निक थॉट ऑफ दैट थिंग. ही टुक इट एज अ स्ट्रेंथ. he it's in his speeches he says, he asked God, what is it that you're trying to show me? So he took it as a strength rather than आपने क्या formation दिया, क्या learning दी. And he's a painter, he's a swimmer, he's a skydiver and a motivational speaker. So hats off to these kind of people, and we should only feed ourselves with those things which are going to take us ahead. हमें वो चीजें अपने दिमाग में डालनी है जो हमें आगे ले जाएं. So this one is for you, the last one. So what would you like to create your life like, knowing consciously? Imagine what your life would be if you are living in a vibrational frequency above 500, जो कि love और joy की है. How can you contribute more to your family and relationships? Ask the right question every time. How will your life change once you remove your low vibrational programming? सारी हटा दीजिए, तब कैसा होगा? And what is one thing that you can do right now to demonstrate? आज आप क्या ऐसा डिसीजन लेते हैं कि आप इसे करेंगे? So this is what you are going to do. So I'll just take 2 minutes or 5 minutes of yours, just last 5 minutes because we are running short of time. I want you people to take an experience of this thing and taste कि आप कैसे अपनी life आज बना सकते हैं. Again, I'll give you a demonstration. So can we have the music, please? So I want you people to bring certain images अपनी लाइफ में. आप images अब आप चूज करेंगे, आपको लाइफ में आपकी कैसी चाहिए, जो भी चाहिए आप वो images लाइएगा अपनी लाइफ में. And choose what do you want to be, how do you want to create a life today. इसी समय, इसी वक्त. Okay, I do want to take. Okay, fine. I'll show you the last two. Just bring that thing in your mind. What kind of life would you like to create for yourself today? If God is sitting here, because we are all connected today, the divine grace is already here. ये जो laws हैं, अगर आप तक पहुँच रहे हैं, तो let me tell you, I'm just a माध्यम हूँ. ऐसे नहीं है लॉज हैं जो एग्जिस्ट तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट क्यों बहुत सारी दुनिया को क्यों कर रहे हैं? वाई द होल वर्ल्ड डज नॉट नो? बिकॉज यू आर द वंस हु हैव समवेयर सम सेंटर डिजायर. आपको डिजायर और एक तरह का यू वांटेड सॉल्यूशंस, तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बना. उस तरह से आज आई एम हियर एज अ माध्यम विद द थिंग व्हाट आई हैड इट, एंड इट इज द डिवाइन grace which is on all of us right now. So create a thought. Can we have music just for 5 minutes? And bring the images of what life you want. What kind of life you want. Bring those pictures in your mind. See yourself in those pictures. Get on your feet and you fix your eyes, close your eyes, with eyes closed when you do it, and just relax yourself, all your muscles, relax your muscles, and go deeper. Today, आज हम सब
shelter में ही बैठे हैं इस समय. We are always there. But आज especially some divine grace is calling all upon us. With all His blessings, with all His love, He's trying to tell you, I'm always there. I'm always there. I love and celebrate. Feel that feeling of His grace calling upon us. The beautiful light which is there. थोड़ी सी वॉल्यूम म्यूजिक भी कम कर दीजिए. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही. थोड़ी सी वॉल्यूम. Now see the divine light coming on from top of the head, from the crown area. आपके ऊपर आ रही है. Just feel that light comes to your forehead, to your eyes. It's going down to your mouth, neck. आपके नेक तक के जा रही है वो. आप उस लाइट को फील करिए, उस डिवाइन ग्रेस को फील करिए. वो लाइट, इट्स अ वाइट लाइट, ब्यूटीफुल वाइट लाइट गोइंग डाउन टूवर्ड्स योर हैंड्स, योर चेस्ट, योर स्टमक, covering the lower area of your body, your legs to your toes. Feel that light. It's very relaxing. You are safe. You're always safe in this light. You are protected all the time. Now take your right hand to your chest. अपने दिल पर अपना सीधा हाथ, इनफैक्ट दोनों हाथ अपने दिल पे रख दीजिए. और उस ब्रीदिंग, अपनी ब्रीथ जो आप ले रहे हो, उस सांस को फील करिए. और उस डिवाइन ग्रेस को जो आज हम सब पे कृपा हो रही है प्रभु की, उसको फील करिए. वो पिक्चर लाइए, अपने खिलखिलाते हुए चेहरे को देखिए. वो अपना सपना पूरा होते हुए देखिए जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. अपने पास देखिए आप इस समय कहाँ हैं. आपके साथ कौन कौन खड़ा है. आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त जो आपके इस जश्न में शामिल हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपकी विक्ट्री, जो सक्सेस जो आपको चाहिए था आपकी लाइफ में. उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए. हेयर देयर साउंड्स, कैसा है, आप किस जगह पे हैं. आप बीच पे हैं तो ओशन के आवाज किनारे हैं. जस्ट सी दैट थिंग, फील इट. Just feel it. स्मेल, कैसी स्मेल है वहां पर. फ्रेग्रेंस कैसी है इस समय जहां पर आप हैं. आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं. सी योर ड्रेस, हाउ ब्यूटिफुल यू आर लुकिंग. अपना खिलखिलाता हुआ चेहरा, वो जो ग्लो है, जो डिवाइन ग्रेस से आज आपके ऊपर है. और आपके वो सारे सपने साकार हुए हैं सिर्फ उस प्रभु की कृपा से. Because you believe in Him. You can see that thing and you can feel it. You're so happy and excited. You're grateful. आपकी कृतज्ञता से आपकी आज आंखें नम होती जा रही हैं. आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपके सपने साकार हैं और आपके परिवारजन, आपके सारे सगे संबंधी, आपके दोस्त, सबके सब बहुत खुश हैं. आप खिलखिला के हंस रहे हैं. नाउ ऑन द काउंट ऑफ 3 आप अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ बहुत तेजी से छोड़ेंगे और बोलेंगे और चीखेंगे. एक चीख निकालेंगे, थैंक यू गॉड. मेरे 3 की काउंट में अपने दोनों हाथ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ, हवा की तरफ छोड़ेंगे और थैंक यू गॉड बोलेंगे. और जब आप ये करेंगे, when you're going to do this, you are really feeling grateful at this thing and you feel like कि आपके dreams सच हो गए हैं. So I'll count till 3 and you will throw your hands in the air. और आवाज जिसकी ज्यादा तेज होगी उसका मतलब उसका faith बहुत strong है. So make sure your vibes, your energy, whatever you're throwing out right now, thank you God, should reach Him. Let it reach Him that you are grateful. 1, 2, 3.
I hope the divine grace fell upon you all, and may this light be upon all of us, and you took certain learnings today. Jai Gurudev, Jai Mata Di. I can't hear your voice. बहुत slow है. I think उन्होंने music के लिए कम करी होगी. Can you please increase the volume? Yeah, is it audible now? Yeah, it is audible. Thank you. Yeah. So thank you so much for this wonderful session on thoughts, and definitely it's thoughts that change our entire reality in life. There were little tips of affirmation, so which is very nice about just looking into your palm and telling the thought 8 times and then putting it together. So thank you so much for that little bit. And I always, when I think of a thought, I always think ourselves as a parachute. And जो हम हवा अंदर डालेंगे और उतनी ही ऊंचाई वो जाएगा. तो अपनी सोच को एक पैराशूट की तरह रखो, which is very open and which has this space of freedom that it can move around in, and that would be a great thing. And my most powerful affirmation that I say to myself every day, that I'm truly blessed, I live in abundance, I'm growing in prosperity, and I'm a peaceful person. Yes, beautiful one. Beautiful one. I'm truly blessed. I live in abundance. I'm growing in prosperity, and I'm a peaceful person. So I would definitely love to share this thought and affirmation, and hope it helps all of you who is there at the moment. So thank you for this wonderful, wonderful session. It's been amazing to have you, and hope to see you soon in person, and definitely hope to bring you here one day physically. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Jai Mata Di. Jai Gurudev. Jai Mata Di. Thank you.